پیارے دوستو، شب بارات کی رات یعنی کل کی رات میں پڑھی جانے والی نفل نماز، ان کا پورا طریقہ ہندی میں شب بارات کی رات میں کس طریقے سے نفل نماز پڑھے جاتے ہیں، کتنے رکعت نفل نماز ہم لوگوں کو ادا کرنے ہیں، اس رات میں کس طریقے سے ہم لوگوں کو عبادت کرنی ہے۔ ویڈیو بڑی بے شک ہے، لیکن اس ویڈیو کے اندر پوری تفصیل سے ہندی میں آپ لوگوں کو ہر ایک طریقہ نفل نماز کا بتایا گیا ہے۔ تو آپ لوگ اس ویڈیو میں آخر تک بنے رہیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے میں بالکل بھی کنجوسی نہ کیا کریں، ایک ویڈیو کافی ہے آپ لوگوں کے لیے۔ پیارے دوستو، آپ مدنی آقا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان المعظم کی 15ویں رات کی عبادت یعنی شب بارات کی رات کی عبادت بہت ہی افضل ہے، اور فرمایا اس رات میں اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے اپنی رحمت کے بے شمار دروازے کھول دیتا ہے۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ کون ہے جو آج کی رات میں مجھ سے بخشش مانگے اور میں اس کو دوزخ کے عذاب سے نجات دے کر اس کی مغفرت کروں۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد آپ مدنی آقا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رات کی عبادت کرنے والے پر دوزخ کی آگ اللہ تبارک تعالی حرام فرما دیتا ہے۔ تو پیارے دوستو، ہم لوگوں کو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اس رات کی کتنی بڑی عبادت کی فضیلت ہے، اس رات کی کتنی بڑی فضیلت ہے، جس کی فضیلت بیان کی جائے اتنا سب کچھ ناکافی رہے گا۔ تو پیارے دوستو، اب ہم لوگ جان لیتے ہیں تفصیل سے نماز پڑھنے کے طریقے، نفل نماز کس طریقے سے پڑھیں، کس طریقے سے اس رات میں نفل نماز ادا کرنی ہے۔ پیارے دوستو، سب سے پہلے ہم لوگ جان لیتے ہیں نفل نماز پڑھنے کا پہلا طریقہ، جو کہ ہم لوگوں کو مغرب کی اذان ہونے کے بعد، مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد پڑھنا ہوگا۔ پیارے دوستو، شعبان کی 15ویں شب یعنی شب بارات کی رات میں آپ لوگوں کو مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد، یعنی جب آپ لوگ مغرب کی نماز ادا کر لیں، مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ لوگوں کو 6 رکعت نفل نماز ادا کرنے ہیں۔ 6 رکعت نفل نماز آپ لوگوں کو 2 رکعت نفل نماز کر کے ادا کرنے ہیں۔ یعنی سب سے پہلے آپ لوگ مغرب کی نماز مکمل طریقے سے ادا کر لیں، جانماز پہ بیٹھ کر آپ لوگ دعا کر لیں، دعا کرنے کے بعد آپ لوگ اطمینان سے کھڑے ہو جائیں 6 رکعت نفل نماز پڑھنے کے لیے۔ یہ 6 رکعت نفل نماز آپ لوگوں کو 2 رکعت نفل نماز کر کے ادا کرنے ہیں، یعنی سب سے پہلے 2 رکعت نفل نماز ادا کریں، اس کے بعد 2 رکعت نفل نماز ادا کریں، اس کے بعد 2 رکعت نفل نماز ادا کریں۔ اب جان لیتے ہیں ان نفل نمازوں کو پڑھنے کا پورا طریقہ کیا ہے۔ تینوں نفل نماز کا طریقہ الگ الگ ہے۔ جو پہلے 2 رکعت نفل نماز آپ لوگ پڑھیں گے، اس کی نیت کریں گے، تو وہ 2 رکعت نفل نماز آپ لوگوں کو کچھ اس طریقے سے پڑھنے ہیں، یعنی 2 رکعت نفل نماز آپ لوگوں کو خیر کے لیے اور عمر میں اضافے کے لیے پڑھنے ہیں۔ یعنی 2 رکعت نفل نماز کی نیت خیر و برکت کے لیے اور عمر میں اضافے کے لیے آپ لوگوں کو کرنی ہے۔ اگلے 2 رکعت نفل نماز جو آپ لوگوں کو پڑھنے ہیں، وہ 2 رکعت نفل نماز تمام طرح کی بلاؤں سے محفوظ رہنے کے لیے، مصیبتوں اور دکھ تکلیفوں سے محفوظ رہنے کے لیے پڑھنے ہیں۔ تیسرے، آپ لوگوں کو 2 رکعت نفل نماز کسی مخلوق کا محتاج نہ ہونے کی نیت سے پڑھنی ہے، یعنی کہ ہم کبھی زندگی میں کسی کے محتاج نہ ہو، اللہ تبارک تعالی ہم لوگوں کو ایسی جگہ سے اتنا رزق عطا کرے جو ہم نے کبھی سوچا بھی نہ ہو۔ تو یہ اگلے 3 رکعت نفل نماز آپ لوگوں کو اس کے لیے پڑھنے ہیں۔ اب جان لیتے ہیں کہ ہر رکعت نفل نماز میں آپ لوگوں کو کس طریقے سے کیا پڑھنا ہوگا۔ پیارے دوستو، یہ نفل نماز بہت ہی عام ہے، ان نفل نمازوں کو پڑھنے کا کوئی مکمل طریقہ نہیں ہے۔ آپ لوگ جس طریقے سے بھی نفل نماز ادا کرتے ہو، اسی طریقے سے نفل نماز ادا کر لیں۔ اب جانتے ہیں کہ نفل نمازوں کے درمیان کیا کیا پڑھنا ہوگا۔ سب سے پہلے 2 رکعت نفل نماز آپ لوگ ادا کریں، ادا کرنے کے بعد وہیں جانماز پہ بیٹھ جائیں،
जनामाज पे बैठने के बाद आप लोगों को एक मरतबा सूरह यासीन पढ़नी है। सूरह यासीन वैसे तो याद नहीं होगी, आप लोग कुरान करीम को बराबर में रख लें, 2 रकत नफिल नमाज अदा करें, कुरान करीम को खोलें, सूरह यासीन पढ़ लें। सूरह यासीन को एक मरतबा पढ़ने के बाद 21 मरतबा सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद ये वाली सूरह पूरी पढ़ लें। उसके बाद आप लोगों को एक मरतबा दुआए निफ्स शाबानुल मुअज्जम पढ़नी है। उसके बाद आप लोग अगले 2 रकत नफिल नमाज के लिए खड़े हो जाएं। अगले 2 रकत नफिल नमाज आप लोग अदा करें बलाओं से महफूज रहने के लिए। उसके बाद आप लोग फिर से कुरान करीम को खोल लें, 1 मरतबा सूरह यासीन पढ़ लें, 21 मरतबा सूरह इखलास पढ़ लें और 1 मरतबा दुआए निफ्स शाबानुल मुअज्जम पढ़ लें। इसी तरीके से आप लोग फिर अगले 2 रकत नफिल नमाज के लिए खड़े हो जाएं। 2 रकत नफिल नमाज अदा करने के बाद आप लोग 1 मरतबा सूरह यासीन पढ़ लें, 21 मरतबा सूरह इखलास पढ़ लें। उसके बाद 1 मरतबा आप लोग दुआए निफ्स शाबानुल मुअज्जम को पढ़ लें। अब आप कहोगे कि दुआए निफ्स शाबानुल मुअज्जम हम कहाँ से पढ़ें? पाकिस्तानी पंसूरा आजकल हर किसी के घर में होता है, तो पाकिस्तानी पंसूरे में आप लोग 451 पेज नंबर और 450 पेज नंबर पर आप लोग आसानी से इसको देखकर इसको पढ़ सकते हैं। अब हम जान लेते हैं अगले नफिल नमाज के तरीके के बारे में। ये तरीका नफिल नमाज का रात का है, यानी नमाज इशा के बाद आप लोगों को ये नफल नमाज अदा करने हैं। नफल नमाज का दूसरा तरीका कुछ इस तरीके से है। आप लोग सबसे पहले जान लेते हैं गुस्ल, यानी 15वीं रात यानी शब-ए बारात की रात में गुस्ल करें। अगर किसी तकलीफ़ की वजह से गुस्ल ना कर सकें या आप लोग कोई परेशानी है उसकी वजह से गुस्ल नहीं कर सकते, कोई बीमारी, कोई परेशानी, कोई दिक्कत है, तो आप गुस्ल ना करें, बल्कि आप लोग ववुज़ू होकर 2 रकत नफल नमाज तहियतुल वुज़ू पढ़ें और हर रकत में सूरह फातिहा के बाद 1 मरतबा आयतल कुर्सी, 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़कर आप लोग इस तरीके से 2 रकत नफल नमाज तहियतुल वुज़ू अदा करें। यानी कि आप लोगों को 2 रकत नफल नमाज तहियतुल वुज़ू अदा करने हैं। हर रकत नफल नमाज में सूरह फातिहा के बाद 1 मरतबा आयतल कुर्सी और 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़कर 2 रकत नफल नमाज आप लोगों को तहियतुल वुज़ू के अदा करने हैं। अब जान लेते हैं नफल नमाज का पहला तरीका। ये तो मैंने बताया था मगरिब के बाद और तहियतुल वुज़ू का तरीका, ठीक है। अब जान लेते हैं नफल नमाज का अगला पहला तरीका। पहला तरीका ये है कि आप लोगों को शब-ए बारात की रात में 2 रकत नफल नमाज अदा करने हैं। 2 रकत नफल नमाज कुछ इस तरीके से अदा करने हैं। सबसे पहले आप लोग 2 रकत नफल नमाज की नियत करें। नियत जिस तरीके से हम लोग हर नफल नमाज की किया करते हैं, ठीक उसी तरीके से नियत कर लें। नियत करने के बाद आप लोगों को सबसे पहले हम लोग जैसे नियत करने के बाद सना यानी सुबहाना पढ़ते हैं, सुबहाना पढ़ लें। सुबहाना पढ़ने के बाद आप लोग 1 मरतबा सूरह फातिहा यानी अलहम्दो शरीफ इसको मुकम्मल तरीके से पढ़ लें। अलहम्दो शरीफ पढ़ने के बाद आप लोग 1 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ें। आयतुल कुर्सी को पढ़ने के बाद आप लोगों को 15 मरतबा सूरह इखलास को पढ़ना है। सूरह इखलास को पढ़ने के बाद आप लोग रुकू सुजूद करें। रुकू सुजूद करने के बाद आप लोग दूसरी रकत नफिल नमाज के लिए खड़े हो जाएं। दूसरी रकत नफिल नमाज में भी आप लोगों को ठीक इसी तरीके से 1 मरतबा सूरह फातिहा पढ़नी है। सूरह फातिहा के बाद 1 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़नी है। आयतल कुर्सी के बाद 15 मरतबा सूरह इखलास पढ़नी है। रुकू सुजूद करना है, सलाम फेरना है। मुकम्मल तरीके से 2 रकत नफिल नमाज आप लोगों को अदा कर लेनी है। जैसे ही आप लोग 2 रकत नफिल नमाज मुकम्मल तरीके से अदा कर लें, उसके बाद आप लोग वहीं जनामाज पे बैठ जाएं। जनामाज पे बैठने के बाद आप लोग एक तस्बीह तौबा इस्तग़फ़ार की पढ़ें। जो भी तौबा इस्तग़फ़ार याद हो पढ़ लें। सबसे छोटी तौबा इस्तग़फ़ार, बड़ी तौबा इस्तग़फ़ार, या फिर आप लोगों को जो भी तौबा इस्तग़फ़ार की तस्बीह याद हो उसको पढ़ लें। उसके बाद एक तस्बीह आप लोगों को दुरूद पाक की पढ़नी है। दुरूद पाक की तस्बीह पढ़ने के बाद अल्लाह तबारक तआला की बारगाह में दोनों हाथों को उठाकर रो रो कर आजिज़ी होकर इनकिसारी के साथ दुआ करें। एक बार फिर ध्यान से सुन लें। 2 रकत नफिल नमाज अदा करने हैं। दोनों रकत नफिल नमाज में सूरह फातिहा के बाद 1 मरतबा आयतल कुर्सी और 15 मरतबा सूरह इखलास पढ़कर आप लोगों को 2 रकत नफिल नमाज अदा करने हैं। जान लेते हैं इन नफिल नमाज की फजीलत क्या है। इन नफिल नमाजों के बारे में कहा जाता है कि अगर कोई शख्स ये नफिल नमाज अदा कर ले तो उसके रोज़ी रोज़गार में बरकत होगी, उसके रिज़्क में इजाफा होगा। अल्लाह तबारक तआला उसको ऐसी जगह से इतना रिज़्क, इतनी मालो दौलत अता करेगा जो उसने कभी सोचा भी ना होगा।
प्यारे दोस्तों, ये तो था नफल नमाज पढ़ने का पहला तरीका। अब जान लेते हैं नफल नमाज पढ़ने का दूसरा तरीका। दूसरा तरीका भी बहुत ही आसान है। दूसरा तरीका कुछ इस तरीके से है, शब बारात की रात में आप लोगों को 8 रकत नफिल नमाज अदा करने हैं। 8 रकत नफिल नमाज, 2-2 रकत नफिल नमाज करके अदा करने हैं। यानी 2 रकत नफिल नमाज की नियत करें, अदा कर लें, 2 रकत नफिल नमाज की नियत करें, अदा कर लें। इसी तरीके से 2-2 रकत नफिल नमाज की नियत करके 8 रकत नफिल नमाज अदा करने हैं। पहले बता देता हूं 8 रकत नफिल नमाज में आप लोगों को क्या पढ़ना है। 8 रकत नफिल नमाज में सूरह फातिहा के बाद 1 मरतबा सूरह कद्र, यानी 8 रकत में 1-1 मरतबा सूरह कद्र और 25-25 मरतबा सूरह इखलास पढ़कर आप लोगों को 8 रकत नफिल नमाज अदा करने हैं। मैं बता देता हूं 2 रकत नफिल नमाज का तरीका, उसी तरीके से 8 रकत नफिल नमाज अदा कर सकते हो। सबसे पहले आप लोग 2 रकत नफिल नमाज की नियत करें। जिस तरीके से हम लोग हर नफिल नमाज की नियत किया करते हैं, उसी तरीके से आप लोग नियत कर लें। नियत करने के बाद पहली रकत में सना यानी सुबहाना पढ़ें। सुबहाना पढ़ने के बाद आप लोग सूरह फातिहा यानी अलहम्दो शरीफ मुकम्मल तरीके से पढ़ लें। अलहम्दो शरीफ को पढ़ने के बाद 1 मरतबा सूरह कद्र पढ़ें। सूरह कद्र जैसे ही मुकम्मल तरीके से पढ़ें, उसके बाद आप लोग 25 मरतबा सूरह इखलास को पढ़ लें। सूरह इखलास को पढ़ने के बाद आप लोग रुकू सुजूद करें। रुकू सुजूद को करने के बाद दूसरी रकत नफिल नमाज के लिए आप लोग खड़े हो जाएं। दूसरी रकत नफिल नमाज में भी ठीक इसी तरीके से आप लोगों को सूरह फातिहा पढ़नी है। सूरह फातिहा के बाद सूरह कद्र पढ़नी है। सूरह कद्र के बाद 25 मरतबा सूरह इखलास को पढ़ना है। सूरह इखलास यानी कुल हु वल्लाहु अहद, ये वाली सूरह मुकम्मल तरीके से पढ़नी है। उसके बाद आप लोग रुकू सुजूद करें, सलाम फेरें, मुकम्मल तरीके से 2 रकत नफिल नमाज आप लोग अदा कर लें। इसी तरीके से आप लोगों को 8 रकत नफिल नमाज अदा करने हैं। अब जान लेते हैं 8 रकत नफिल नमाज जो हमने पढ़े उसको पढ़ने की फजीलत क्या है। फजीलत यह है कि गुनाहों की मगफिरत के लिए ये नमाज बहुत ही अफजल है। अल्लाह तबारक ताला इस नमाज के पढ़ने वाले की बख्शिश फरमाएगा। सुबहान अल्लाह। तो ये था नफल नमाज पढ़ने का दूसरा तरीका। अब जान लेते हैं इस ही रात में नफल नमाज पढ़ने का तीसरा तरीका क्या है। तीसरा तरीका भी बहुत ही आसान है। तीसरा तरीका कुछ इस तरीके से है, शब बारात की रात में यानी कल की रात में आप लोगों को 8 रकत नफिल नमाज अदा करने हैं। 8 रकत नफिल नमाज आप लोगों को 2 सलाम के साथ अदा करने हैं। 2 सलाम का मतलब यह हुआ कि पहले 4 रकत नफिल नमाज, उसके बाद 4 रकत नफिल नमाज। 8 रकत नफिल नमाज 4-4 रकत नफिल नमाज करके आप लोगों को अदा करने हैं। सबसे पहले जान लेते हैं 8 रकत नफिल नमाज में क्या पढ़ना है। 8 रकत नफिल नमाज में आप लोगों को सूरह फातिहा के बाद सूरह इखलास को 10-10 मरतबा पढ़ना है। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को 8 रकत नफिल नमाज अदा करने हैं। अब मैं आप लोगों को 4 रकत नफिल नमाज का तरीका बता देता हूं, उसके बाद आप लोग इसी तरीके से 8 रकत नफिल नमाज अदा कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोग 4 रकत नफिल नमाज की नियत करें। जिस तरीके से हम लोग हर नफिल नमाज की नियत किया करते हैं, उसी तरीके से नियत कर लें। पहली रकत में हम लोग सना पढ़ेंगे, सना यानी सुबहाना। उसके बाद आप लोग 1 मरतबा सूरह फातिहा यानी अलहम्दो शरीफ पढ़ें। उसके बाद 10 मरतबा आप लोग सूरह इखलास यानी कुल हु वल्लाहु अहद, ये वाली सूरह पूरी पढ़ लें। रुकू सुजूद करें। रुकू सुजूद करने के बाद दूसरी रकत नफिल नमाज के लिए आप लोग खड़े हो जाएं। दूसरी रकत नफिल नमाज में आप लोग इसी तरीके से सूरह फातिहा पढ़ें, 10 मरतबा सूरह इखलास पढ़ें, रुकू सुजूद करें। रुकू सुजूद करने के बाद कायदे में बैठ जाएं। कायदे से जैसे ही आप लोग उठकर खड़े होंगे तीसरी रकत नफिल नमाज के लिए, तीसरी रकत नफिल नमाज में आप लोग ठीक इसी तरीके से 1 मरतबा सूरह फातिहा यानी अलहम्दो शरीफ और 10 मरतबा सूरह इखलास पढ़ लें। रुकू सुजूद करें। चौथी रकत नफिल नमाज के लिए खड़े हो जाएं। चौथी रकत नफिल नमाज में आप लोग ठीक इसी तरीके से सूरह फातिहा और 10 मरतबा सूरह इखलास पढ़ें, रुकू सुजूद करें, सलाम फेरें। मुकम्मल तरीके से आप लोग 4 रकत नफिल नमाज अदा कर लें। ठीक इसी तरीके से आप लोगों को अगले 4 रकत नफिल नमाज अदा करने हैं। 8 रकत नफिल नमाज आप लोगों के अदा हो गए। अब जान लेते हैं कि 8 रकत नफिल नमाज पढ़े तो इसको पढ़ने की फजीलत क्या है। अल्लाह तबारक ताला इस नमाज के पढ़ने वाले के लिए बेशुमार फरिश्ते मुकर्रर करेगा जो उसे कब्र के अजाब से निजात की और दोज़ख से निजात की, इसके साथ साथ जन्नत में दाखिल होने की खुशखबरी देंगे। सुबहान अल्लाह। तो प्यारे दोस्तों, इस रात में पढ़े जाने वाले जो नफिल नमाज हैं उनका पूरा तरीका मैंने आप लोगों को मुकम्मल तरीके से बता दिया। प्यारे दोस्तों, इसके साथ साथ आप लोग शबे कद्र की रात में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें। उस रात में अपने गुनाहों की तौबा करें, अल्लाह तबारक ताला से मग़फ़िरत करें, अल्लाह तबारक ताला से
अपने गुनाहों की रो रो कर आजिज़ी होकर इंकिसारी के साथ तौबा करें। इसके साथ साथ उस रात में हम लोगों को चाहिए कि हम लोग कुरान करीम पढ़ें, कसरत से दुरूद पाक पढ़ें, तौबा इस्तग़फ़ार की तस्बीह पढ़ें। इसके साथ साथ हम लोगों को चाहिए कि हम लोग 15 तारीख का रोज़ा रखें। प्यारे दोस्तों, इसके साथ साथ जान लेते हैं इस रात में पढ़े जाने वाले कुछ अमल। शाबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं रात यानी शब बारात की रात में सूरह दुखान 7 मरतबा पढ़ना बहुत ही अफजल है। यानी सूरह दुखान को 7 मरतबा पढ़ना बहुत ही अफजल है। अल्लाह तबारक ताला 70 ज़रूरतें उसकी दुनियावी पूरी करता है और 70 ज़रूरतें उसकी आखिरत की कबूल फरमाता है। तो प्यारे दोस्तों, आप लोग उस रात में 7 मरतबा सूरह दुखान को ज़रूर पढ़ें। इसके साथ साथ हम लोगों को चाहिए कि हम लोग शाबान के महीने की 15वीं तारीख का रोज़ा ज़रूर रखें। उस रोज़े की बहुत ही बड़ी फजीलत है। जो कोई ये रोज़ा रखेगा अल्लाह तबारक ताला उसके 50 साल के गुनाह माफ़ फरमाएगा। तो प्यारे दोस्तों, मैंने आप लोगों को बताए बहुत सारे अमल, वज़ाइफ, इसके साथ साथ उस रात में पढ़े जाने वाले नफल नमाज। वीडियो के आखिर में मेरी गुजारिश रहेगी कि आप लोग इस प्यारी सी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि दीनी मालूमात दूसरों तक पहुंचाना सदका-ए जारिया है। इसके साथ साथ अगर आप लोगों के ज़िम्मे क़ज़ाए नमाजें वाक़ई हैं, आप लोगों ने नमाजें क़ज़ा कर दी हैं, तो आप लोगों को चाहिए कि आप लोग सबसे पहले क़ज़ाए नमाजें मुकम्मल तरीके से पूरी करें। उम्री क़ज़ाए नमाजें पढ़ें। जो क़ज़ा नमाजें हमारे ज़िम्मे वाक़ई रह गई हैं वो हमको पूरी करना ज़रूरी है। तो हम लोग सबसे पहले चाहिए कि हम लोग नफल नमाज, तो नफल नमाज है उसको हम बाद में भी पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को चाहिए कि हम लोगों के ज़िम्मे जो भी क़ज़ाए नमाजें वाक़ई रह गई हैं तो हम उन नमाज़ों को पहले अदा करें, उसके बाद ही कोई नफल नमाज पढ़ें। उस रात में हम लोगों को चाहिए कि पहले क़ज़ा नमाजें अदा कर लें, उसके बाद ही हम लोग नफल पढ़ें, या उसके बाद ही हम लोग कोई किसी भी तरह का कोई वज़ाइफ करें या किसी भी तरह का कोई अमल करें। तो हम लोगों के ज़िम्मे जो नमाजें वाक़ई हैं पहले हम लोगों को वो नमाजें मुकम्मल तरीके से अदा करनी है। तो प्यारे दोस्तों, अब मैं आपसे जाने की इजाज़त चाहता हूँ। इंशाअल्लाह ताला दिन में मुलाकात होगी 2 ख़ास और वीडियो के साथ। जो बचे हुए नफल नमाज के तरीके हैं वो मैं आप लोगों को और बताऊंगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला सुबह में 11:30 बजे, उसके साथ साथ रात में 9:30 बजे 2 और ख़ास वीडियो के साथ। जब तक कि मुझे दुआओं में याद रखिएगा। दुआओं की गुजारिश। अल्लाह हाफिज़, शब्बा खैर।